नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वः कृपावनिदाता। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाश नो स्वाध्याय આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 43 નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। સવંગ ગાથા 169। આ ગાથા એનો અન્વયાર્થ ભાવાર્થ તથા આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તેનો થોડો ભાગ કર્યો છે। શેષ ભાગ આજે લઈશું। મૂળ ગાથામાં એમ કહ્યું કે જે કોઈ જ્ઞાની પુરુષ મનમાં તત્વ તથા અતત્વને જેમ છે તેમ બરાબર જાણીને સંભાવમાં સ્થિત થાય છે અને જેની આત્મ સ્વરૂપમાં લીનતા છે તે જીવો આ જગતમાં પરમ સુખી છે। જે આત્મ સ્વરૂપમાં લીનતા કરે છે એ જીવો સુખી છે। તત્વ અને અતત્વને જાણીને સંભાવમાં સ્થિત થાય છે એટલે તત્વને અતત્વને જાણવાની વાત લીધી એટલે અહીંયા પહેલા ભાવાર્થની અંદર પંડિતજીએ 7 નય દ્વારા નિશ્ચય અને વ્યવહાર દ્વારા વસ્તુ સ્વરૂપને સમજાવ્યું, જેથી શું નિશ્ચયથી વસ્તુનું સ્વરૂપ છે અને વ્યવહારથી શું કહેવાય છે એ વાત લીધી અને પછી આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાય છે તે જીવો સુખી છે એ વાત લીધી। હવે આ જ્યારે વાત લીધી તો એમાં આધાર તરીકે પૂજ્યપદ આચાર્ય શ્રીના સિદ્ધ ભક્તિનો શ્લોક લેવામાં આવે છે। પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રી એ જે સિદ્ધ ભક્તિમાં એક શ્લોક કયો છે એને અહીંયા આધાર તરીકે લેવામાં આવ્યો છે, તો એ આપણે લઈએ છીએ આજે। ના ભાવ સિદ્ધિરિષ્ટા નિજ ગુણ હતી તપો નિર્નિર્ન યુક્તે ત્યાત આત્માનાદિબદ્ધ સ્વકૃતજ ફલ ભુક્ તત્ક્ષયાન મોક્ષ ભાગી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વદેહ પ્રમિતિ રૂપ સમાહાર વિસ્તાર ધર્મા દ્રવ્યોત્પત્તિ વ્યય આત્મા સ્વગુણયુત હિતો નાન્યથા સાધ્ય સિદ્ધિ। અને એનો અર્થ છે કે મોક્ષ અભાવરૂપ નથી, તેમ પોતાના ગુણોની હાનિરૂપ પણ નથી। કારણ કે જે લોકો મુક્તિને અભાવરૂપ તથા ગુણોની હાનિરૂપ માને છે તેઓને ત્યાં તપ આદિ વડે તેવી સિદ્ધિ યોગ નથી। આ બહુ મોટી અને મહત્વની વાત છે। જૈન મત સિવાય બીજા અન્ય મતની અંદર આવી પણ વાત છે, મોક્ષને અભાવરૂપ માનવામાં આવે, બસ પછી કાંઈ રહેતું નથી, એવી મોક્ષની વાત નથી હોતી। મોક્ષ કંઈ અભાવરૂપ નથી। મોક્ષમાં તો પોતાના પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે, એનો લાભ છે, પૂર્ણ લાભરૂપ મોક્ષ છે, અભાવરૂપ નથી। પૂર્ણ ભાવની પ્રગટતારૂપ મોક્ષ છે। એમાં પોતાના ગુણોની હાનિ થાય એવી કોઈ વાત હોતી નથી, કંઈ ક્ષય થઈ જાય પોતાનામાંથી એવી કોઈ વાત નથી। એટલું જ નહીં, બીજા કેટલાક મતમાં તો એ રીતે આખી વાત છે, બસ પછી કાંઈ મોક્ષ એટલે પછી બીજું કાંઈ રહેતું જ નથી એમ જ વાત આવે છે। વેદાંતમાં પણ એવી રીતે વાત છે કે પછી એક પરમાત્મામાં આત્મા ભળી જાય છે એટલે એનો તો પોતાનો તો એ રીતે અભાવ થઈ ગયો, બીજામાં અન્યમાં ભળી જાય એટલે પોતાનું અસ્તિત્વ તો રહ્યું નહીં, એવી વાત હોતી નથી। અને એ આ શ્લોકની અંદર સિદ્ધ ભક્તિના શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મોક્ષ અભાવરૂપ નથી, તેમ પોતાના ગુણોની હાનિરૂપ પણ મોક્ષ નથી।
કારણ કે જે લોકો મુક્તિને મોક્ષને અભાવરૂપ તથા ગુણોની હાનિરૂપ માને છે તેઓને ત્યાં તપ આદિ વડે તેવી સિદ્ધિ યોગ નથી. આ જીવ અનાદિકાળથી કર્મબદ્ધ છે. અનાદિથી છે એટલે કે જીવ જ્યારથી છે ત્યારથી એને કર્મ તો છે. સોનું આપણને કઈ દાગીના રૂપે મળતું નથી. તૈયાર દાગીના રૂપે સોનું મળે કે ગઠ્ઠા સોનાને મળે એમ નથી હોતું. સોનાને ખાણમાંથી ખોદીને કાઢવામાં આવે તો સોનાની ઓર હોય છે, એટલે એ માટી સાથે ભળેલું હોય છે. એવી રીતે આ જીવ જ્યારથી છે ત્યારથી એ કર્મ સહિત છે. પહેલા એ કર્મ રહિત હતો અને પછી એને કર્મ વળગ્યા એવી વાત નથી. પહેલા શુદ્ધ હતો અને પછી એ મલિન થયો એવી કોઈ વાત નથી. જ્યારથી જીવ છે ત્યારથી એ કર્મ સહિત છે. પણ કર્મ એનાથી જુદા છે અને એ કર્મ બદલાયા કરે છે. એકના એક કઈ કર્મ રહ્યા છે એમ નથી, એના એ કર્મ રહે છે એમ નથી. નવા નવા બંધ પડ્યા કરે છે. સ્થિતિ પૂરી થાય છે, એનો વિપાક આવે છે અને એનું ફળ આવે છે. એની સાથે જોડાઈ અને જીવ નવા પાછા કર્મ બાંધી લે છે. વિવાહ ભાવે થાય છે અને કર્મ બાંધે છે. એટલે આમ ચક્ર ચાલ્યા કરે છે. પણ છતાંય અનંત જીવોએ એ વાતને જાણી સમજી અને પોતે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ સુખ શાંતિમય છે એવો નિર્ણય કરી અને એવા ભાવે પરિણમી ગયા કે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરી અને સિદ્ધ થયા છે. એમને કોઈ કર્મ નથી. એ સંપૂર્ણ કર્મ રહિત થયા છે. એટલે જીવનું એવું જ સ્વરૂપ છે. ભલે આ જીવ અનાદિથી કર્મબદ્ધ છે, પોતાના કરેલા શુભાશુભ કર્મને ભોગવે છે, તો તે કર્મ ક્ષયથી મોક્ષ અવસ્થા પામે છે. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તથા ચરમ શરીરથી કંઈક નિમ્ન આકાર વાળો, સંકોચ વિસ્તાર રૂપ ધર્મ વાળો, ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રવ્ય સ્વરૂપ તથા પોતાના ગુણોથી યુક્ત એવો આ આત્મા છે. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે તથા ચરમ શરીરથી કંઈક નિમ્ન આકાર વાળો, એટલે એ દ્વારા સમજાવવું એ છે કે જ્યારે છેલ્લું શરીર છોડે છે તો સહેજ નિમ્ન એટલો એનો આકાર રહે છે. પ્રદેશત્વ ગુણની પર્યાય એમ થાય છે ને એ આકારે હોય છે. અને બીજી રીતે સંકોચ વિસ્તાર રૂપ ધર્મ વાળો, એટલે કે એના અસંખ્ય પ્રદેશ છે અને સંસાર પર્યાયમાં જે શરીર સાથે રહે છે એ શરીર પ્રમાણ થઈ જાય છે. એટલે એમ સંકોચ વિસ્તાર થાય છે, પણ પ્રદેશ અપેક્ષા એ તો અસંખ્ય પ્રદેશ પ્રમાણ જ છે. એવા ધર્મ વાળો છે. વળી ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રવ્ય સ્વરૂપ છે. પોતે ત્રિકાળ વસ્તુ રૂપે તો દ્રવ્ય રૂપે તો એક રૂપે જ રહે છે. એટલે ધ્રુવ છે, જેમાં કઈ બદલાવ આવતો નથી, બદલાતું નથી, કઈ વધઘટ થતી નથી, એવો જ છે. પરંતુ એની અવસ્થા બદલાય છે એટલે પર્યાય એના ઉત્પાદ વ્યય છે. એટલે ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રવ્ય સ્વરૂપ એવું આત્માનું સ્વરૂપ છે. તથા પોતાના ગુણોથી યુક્ત એવો આ આત્મા છે. અનંત ગુણોનો પિંડ ભગવાન આત્મા છે અને એ ગુણો છે એટલે ગુણોનું ભવન છે. અને ગુણોનું ભવન છે એ એને અનુભવમાં આવે એવું છે. ગુણો પરિણમી રહ્યા છે. ગુણો કઈ કુટસ્થ નથી અને એક પણ ગુણ ઓછો થતો નથી, એક પણ ગુણ વધતો નથી. અને એ બધા ગુણો એક સાથે રહ્યા છે અને એ એને અનુભવમાં એક સાથે આવે એવો એનો સ્વભાવ છે. એવા ગુણને અનુસરીને એનો સ્વભાવ છે. જ્યારે એ એવા પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરે છે તો એને એવો અનુભવ પણ થાય છે. અને વધારે એમાં એકાગ્રતા કરે છે તો એમાં લીનતા કરે છે અને એ સુખ શાંતિ આનંદની દશામાં ઘણો સમય રહે છે. અને છેવટે જયારે એમાં સ્થિરતા કરી લે છે તો એ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે, અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ કરે છે. અને એ પહેલા એ અર્યંત દશાને પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી 4 અઘાતી કર્મોનો પણ ક્ષય થઈ જતા એ સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત કરી લે છે. એટલે આત્મા આવો છે. તો એની વાત કરતા આગળ કહે છે કે એ પોતાના ગુણોથી યુક્ત એવો આ આત્મા છે. એટલે એ ગુણ કાંઈ જતા નથી. મોક્ષ થાય છે તો કઈ ગુણનો અભાવ થઈ જાય છે, આત્માનો અભાવ થઈ જાય છે એવી કોઈ વાત નથી. એટલે આવી રીતે આત્માને જાણવાથી, જેવું આત્માનું સ્વરૂપ છે એવા સ્વરૂપને જાણવાથી
વર્તમાન પર્યાયમાં એને મલિનતા છે, છતાં પણ પોતે આવો છે એમ જાણવાથી સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. એનું સાધ્ય શું છે? પોતાનું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ એ એનું સાધ્ય છે. એ એને સિદ્ધ કરવાનું છે. પોતાનું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એ એને પ્રગટ કરવાનું છે. તો જ્યારે એ એવા પોતાના સ્વરૂપને જાણશે અને પછી એવો પુરુષાર્થ કરશે ત્યારે થશે ને. એટલે એના સ્વરૂપ વિશે અહીંયા આ વાત કરવામાં આવી છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે અન્ય રીતે જાણવાથી આત્મા કઈ પ્રગટ નહીં થાય. કે છે કે આવી રીતે આત્માને જાણવાથી સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે, અન્ય રીતે નહીં. આત્મ તત્વનું જ્ઞાન જ યથાર્થ તત્વ છે. રાગાદી વિકાર ભાવ આત્માને માટે અતત્વ છે. એમ ભેદ વિજ્ઞાન દ્વારા જાણી આત્મામાં જ સ્થિરતા કરવી જોઈએ. જે કંઈ શાસ્ત્રો રચાયા છે એ બધા પોતાના સ્વરૂપની, પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિને અર્થે જ, વિતરાગતા પ્રગટ કરવાને અર્થે જ રચાયા છે. બધા જ શાસ્ત્રોનું પ્રયોજન તો વિતરાગતા જ છે. તો આ રીતે 43મી ગાથા છે. હવે ગુરુદેવે આ ગાથા ઉપર વિસ્તાર કરતા જે બે નયની વાત સમજાવી છે ત્યાંથી પછી આગળ વાત આપણે લઈએ છીએ. 7 નય દ્વારા વસ્તુ સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કર્યું છે. તો પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 5મો, એના પાના નંબર 37 ઉપર 3જો પેરેગ્રાફ. भोगने वाला है. 2 बात है, 2 थी ने. હવે यद्यपि व्यायाम से कर्मों के क्षय होने के बाद मोक्ष का पात्र है. मोक्ष का पात्र तब मोक्ष होता है पर्याय. व्यवहार नहीं से कर्मों का क्षय होने से बाद मोक्ष पर्याय होती है. तो भी शुद्ध परिणामी परम भाव ग्राहक शुद्ध रासिक सदा मुक्त ही है. भगवान स्वभाव शुद्ध परम परिणामी सहज भाव शुद्ध परम भाषा સાંભળી ન હોય કોઈ દી. શુદ્ધ પરિણામી પરમ ભાવ ગ્રાહક શુદ્ધ સ્વભાવ જે ધ્રુવ ત્રિકાળ એ પરમ પરિણામી ભાવના સદા शुद्ध दरियाती नहीं से तो सदा मुक्त ये प्रभु है. ये आत्मा है बंध में आया नहीं, मुक्ति नहीं. बंध में मुक्ति तो पर्याय में होती है. भगवान वस्तु है तो मुक्त है सदा दिखाओ. अब स्पष्ट क्या ने जेने जैन शासन केने दीक्षा कि जे आत्मा ने अब स्पष्ट सामान्य विशेष रहित एवं अभेद को अंदर देखे, माने, अनुभवे, उसने जैन शासन देखा. 14મી 15મી गाथा समय सार. तो अबद्ध कहो कि मुक्त कहो. હવે અત્યારે મુક્ત સ્વરૂપ है आत्मा એમ કે છે. કર્મનો સંબંધનો બંધ ને અભાવની મુક્તિ બે જેમાં નથી. એ તો ટીકા મુક્ત સ્વરૂપ છે. શુદ્ધ પરિણામી કે તે સહજ, જેને કોઈ પદની અપેક્ષા નથી. પરમ ભાવ એવો પરમ ભાવને જાણનારી શુદ્ધ હૃદયથી નહીં છે, સદા મુક્ત એ પ્રભુ છે. સીધ સમાન સદા પદ મેરો. बनारसीदास कहते हैं सीध समान सदा पद मेरो, त्रिकाल मेरा पद तो सिद्ध समान है. पर्याय में राग का संबंध है, पर्याय में मुक्त, पर्याय में मुक्ति है. वस्तु तो मुक्त स्वरूप है. એટલી વાતમાં યાદ રાખવી. બધી વાત નવી લાગે. एक इंडिया, 2 इंडिया, 3 इंडिया, 4 इंडिया, 5 इंडिया भी होती है. टीवी जीव एम જ છે બધું કરી લો. હવે અહીં કઈ વાત તો આવી ને એમાં કઈ
તસુતરી કરે જો ને એમ આવે છે ને સાવ કાંઈ છાણે જાણે અપાણ. એ તો બધી રાગની ક્રિયાની વાતો છે બાપુ, તને ખબર નથી. हाँ हाँ, भगवान तो राग से मुक्त टिकाव है एम कहते हैं. मोक्षनी पर्याय है ये तो पहला कहा, व्यवहार नहीं से. ये तो कर्मना क्षय होने से मोक्ष के पर्याय होती है, तो व्यवहार पर्याय है. तो हाँ 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 हाँ, मोक्ष जो सिद्ध है तो एक पर्याय है. जीवनो एक पर्याय नो भेद है. वस्तु तो टिकाव मुक्त है. समझ में आया? मुक्त स्वरूप है तो उसमें से मुक्ति की पर्याय प्राप्त होती है. जीणुं पड़े मसादा पछाने आंबील न होय ने मार्ग तो आ छे प्रभु. अनंत तीर्थंकरो जिनवर देव हे मार्ग तो आ कयो छे. शांतिभाई आ બધું સાંભળ્યું નહીં. શાંતિભાઈ કહું છું, બધું ત્યાં મોટા થઈને ફરતા જ્યાં ત્યાં હશે ને આ એ સાચું છે, આ એ સાચું, આમાં છે ને એમ કરે. આ તો કે આ એટલું જ સાચું છે, બીજું સાચું નથી. બીજા સચ્ચા હે નહીં. થોડી થોડી ગુજરાતી આવે ને भाई बड़ी हिंदी नहीं कही है. कल भी हिंदी आया था आगरा ना 50 मानस में आगरा में आया था. कल हिंदी हुआ था. आगरा मानस आवे थे ना, जात्रा निकले पालिताने गिरनार आवे वहां उतरे देखने को. ना तो देखने की चीज हो गई ना. आप तो 26 लाख का मकान है एक आरस पान. भगवान की वाणियां कोतरेली 4.25 लाख अक्षर है. आखिर हिंदुस्तान में पहले वेला, क्योंकि मशीन से कुतराएले. हिंदुस्तान में मशीन ज आया नहीं था कभी. इटाली से मशीन आया है, यहाँ मशीन है, उससे 4.25 लाख 5 महीने में कुतरा गया. अस्तर से लखे तो 2 वर्ष हो. 107 अक्षर अस्तर से न हो सरकार एक धारा है. जिनवाणी जिनवाणी वितरागवाणिया सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला. आ धर्मशाला है. भगवान की वाणी ना गोदाम में बैठा है. माता ना गोदाम में बहे ने गोद में जिनवाणी गोद में आया. चारे कोड़े हेठे ऊपर. कुदरते बनी गયું, કોણ કરે? आत्मा करी सके नहीं हो मकान मकान. परधर्म की पर्याय आत्मा कर सके नहीं 3 काल में. उसके कारण से जन्म क्षणों को पर्याय की उत्पत्ति का काल क्या हो गया है. आत्मा क्या पद न कर सके कोई? तो मारी शुभ राग हो तो ये पुण्य बंधन का कारण है. राग थी थाय છે ક્યાં એને મેળવાય થાય છે. રાગ થી થાય તો રામજીભાઈ ને ઘણો ભાવ ત્યાં તો એનું થવાનું એ થયું છે ને. सदा मुक्त है देवीलाल जी. कौन? हाँ, भगवान अंदर आत्मा. रतन चैतन्य रतन जेम डाबला में भिन्न है. डब्बा कहते हैं डाबला, डब्बी भिन्न है. ऐसा शरीर रूपी डब्बी न राग रूपी विकार से भिन्न है भगवान अंदर. शोध द्रव्यार्थी के नहीं से देखे तो भगवान तो मुक्त स्वरूपी है. सम्यक दृष्टि जीव को मुक्त स्वरूप देखते हैं. अवध स्वरूप देखते हैं, क्या मूल स्वरूप देखते. ये जैन शासन है. ये जैन शासन दूसरी चीज अलौकिक बापू. जैन धर्म सिवाय जैन शासन सिवाय ક્યાંય વાત આ है ही नहीं.
सच बात है, उसका संप्रदाय को खबर नहीं तो दूसरा में तो है क्या। वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ वाणी में आत्मा मुक्त स्वरूप देखा है सदा। यद्यपि व्यवहार नहीं कर इंद्रिय जनित सूक्ष्म ज्ञान है, मति आदि है ना, सूक्ष्म ज्ञान पर्याय में विकास है ना, तुम देखा ना, मति आदि सुत आदि, ये ज्ञान है चक्षु आदि दर्शन सहित है। चक्षु से देखना आदि अंदर पर्याय में पर्याय, तो भी निश्चय नहीं से सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव वाला है। भगवान तो अंदर केवल एक ज्ञान एक ही दर्शन स्वरूप की गांठड़ी है। उसमें खोले तो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता है। व्यवहार नहीं से मति सूत के जो ज्ञान विकास का अंश दिखते हैं, ये तो व्यवहार नहीं से है। पर्याय है ना, निश्चय से तो भगवान केवल ज्ञान केवल दर्शन की मूर्ति, केवल ज्ञान पर्याय नहीं। भगवान जो हरिहंस को केवल ज्ञान है, ये तो पर्याय है। तो केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव है तीखा। समझ में आया। सकल विमल, पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव स्वभाव वाला एम कहूं, केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला भगवान है। जेम शक्कर का स्वभाव मिठास है, एम भगवान का स्वभाव केवल ज्ञान केवल दर्शन है। समझ में आया। ये वस्तु क्या है, कभी सुना नहीं, नजर दिया नहीं, जगत ની મજૂરી કરકે મર ગયા, અને ધર્મને નામે પણ વ્રત ને ભક્તિ ને પૂજા એ પણ રાગની મજૂરી હે। તારાસનજી, પણ ભગવાન ત્રણલોકનો નાથ એમ કહે कि तेरी चीज है अंदर मुक्त स्वरूप है। पर्याय में बंधन है, पर्याय से मुक्ति होती है, पर द्रव्य को मुक्ति कहना पर्याय से ये नहीं, तो मुक्त स्वरूप ही टिकाव है। बंधाएल नहीं तो मुक्त कहां से होता है अंदर। समझ में आया। सम्यक दृष्टि का विषय ध्येय मुक्त स्वरूप परमात्मा प्रत्यय है, आत्मा प्रत्यय है। परमात्मा को का आत्मा। एक थोड़ा 5-50 हजार मिल जाए एक दिवस में कमाए, राजी राजी थे। लापसी नादन करो, लापसी लापसी कहते क्या कहते हैं, कोई इतना लापस होता रहो। हलवा सीरा कहते हैं, कंसार के, कंसार नहीं, तुम्हारे कंसार के लापसी कहते हैं। लापसी मुझको आज 50,000 पैदा हुआ है, तो मैं क्या हुआ, तने तो दुख हुआ पैसा मारा, मेरा ये ममता हुई, ममता दुख हुई तेरे तो माने जे मुंड यहाँ क्या सुख। વાત તો એવી છે પ્રભુ, આ તો વિતરાગ માર્ગ બાપા જિનેશ્વર દેવ, જેણે ચક્રવર્તી પદ છોડીને શાંતિનાથ, કુંભનાથ, હરનાથ 3 ચક્રવર્તી હતા, 3 તીર્થંકર હતા, ચક્રવર્તી હતા, કામદેવ હતા। કામદેવ નામ એના જેવું રૂપ કોઈ અઢી દીપમાં નહોતું, એવું જ એનું રૂપ હતું। શાંતિનાથ, કુંભનાથ, હરનાથ 3 તીર્થંકર, ચક્રવર્તી અને કામદેવ 3 પદવી હતી। 96,000 સ્ત્રીઓ, એક સ્ત્રીને 1000 દેવ સેવા કરે, એક સ્ત્રી એવી મોટી રતન। બળકો છોડે એમ છોડી દીધો, ये चीज मारी नहीं, मारी मारी मेरी पास है। मैं तो मेरी पास जाता हूँ। ये आते हैं
प्रवचन सार में मुनि दीक्षा देते हैं। सच्चा मुनि हो, और मुनि तो हजी सम्यक दर्शन हो પછી मुनि पण होता है। ये सम्यक दर्शन ठेकाना नहीं है। तो सम्यक दृष्टि है, आत्मा का अनुभव है, तो किसी दीक्षा लेने को स्त्री को कहते हैं कि हे शरीर ने रमाडनारी स्त्री, शरीर ने रमाडनारी, मने रमाडनारी नहीं है। रजा दे, मैं मारी अनुभूति अनादि के अंदर है, उसके पास में जाता हूँ। आनंद की अनुभूति मेरे अंदर में है, उसके पास में जाता हूँ। मोक्ष अंदर पड़ा है, अनुभूत क्या मैं जाता हूँ। माता पिता ने एम कही, माता पिता जनेता शरीर ना जनेता, जनक ने पिता, मेरा जनक नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। एक बार रजा दे माँ, मैं मेरी आनंद मूर्ति भगवान आत्मा उसके पास में जाता हूँ। ये मुक्त तो सदा उसके पास जाने के माटे आज्ञा करते हैं। माता अने फिर जनेता मैं नहीं करूंगा माता। एक बार रोना हो तो रो ले, पर हम तो चले जाएंगे हमारा आत्मा का आनंद में। तेरे फिर जनेता फिर माता हम नहीं करेंगे, हम तो मुक्त जाएंगे। ये चक्रवर्ती का राज छोड़कर ऐसे चले जाते हैं वन में ही किला। ये है कहती मुक्त स्वरूप में प्राप्त करने को। इंद्रियजन्य केवल ज्ञान में केवल दर्शन स्वभाव। भगवान तो पूर्ण ज्ञान ने पूर्ण दर्शन स्वभाव नो पिंड है। वो शकरकंद का दर्शन नहीं दिया था, वो शकरकंद है ना, तो उसकी छाल लाल थोड़ी है, ये सिवाय सारा शकरकंद है। शकरकंद એટલે સાકરની મીઠાશ का पिंड। शकरकन्या लोग खाए थे ना, विष्णु लोग को शिवरात्रि में बाफी ने खाए। तो शकरकंद उपली एक लाल छाल है, उसको न देखो तो सारी चीज ये शकरकंद है। शक्कर नाम साकर मीठास का पिंड है। भगवान आत्मा पुण्य पाप का विकल्प की छाल न देखो तो अतीन्द्रिय ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है आत्मा। तो पण क्या बहे, शकरकंद बहे पर न बहे ने। समझ में आया? रणलोक नो नाथ आनंद ने ज्ञान थी पूर्ण भरेलो प्रभु पोते छा। स्वयं पोते है। ये निश्चय से तो ये है। પછી પ્રદેશની વ્યાખ્યા થોડી કરશે શંકુજી। परमात्मा प्रकाश चलते हैं 43 गाथा है। क्या कहते हैं पाठ तो ऐसा है, तत्ता तत्व मुनिवी। भगवान आत्म तत्व क्या है और जराग आदि पर तत्व क्या है, दो को जानकर आत्मा में लीन होना, ये धर्म है। पाठ है न, तत्ता तत्व मुनिवी, मणि जी तक्का संभावी, पर सुइया ही छूट जी आत्मा आनंद स्वरूप चैतन्य स्वभाव, केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव उसका है। केवल ज्ञान जो केवल ही परमात्मा का होता है तो पर्याय है अवस्था। तो है आयु से आया। देखो निश्चय नहीं से सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव वाला है, अंदर आया है बीच में छे। आत्मा पर्याय न वर्तमान अवस्था से देखो तो इंद्रिय जनित ज्ञान सूक्ष्म है, पर उसका स्वभाव देखो टिकाड़ी, तो एक ज्ञान ने आनंद ने मूर्ति प्रभु है। केवल ज्ञान ने केवल दर्शन स्वरूप है। ये दृष्टि में लेने लायक है। समझ में आया? वर्तमान पर्याय में यहाँ आया है
इंद्रिय जनित मति आदि एक सूक्ष्म है, चक्षु आदि है, चक्षु दर्शन आदि पर्याय में वर्तमान हालत में, पर तो भी निश्चय नहीं से देखो अंतर का स्वरूप हो आत्मा का नित्यानंद प्रभु, ये केवल ज्ञान ने केवल दर्शन स्वभाव है। आत्मा ऐसा है, पर्याय में मति ज्ञान आदि है, स्वभाव में अकेला ज्ञान दर्शन परिपूर्ण प्रभु है। ये पर्याय की दृष्टि छोड़कर सूक्ष्म बात है भाई। एक ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप आत्मा है, उसमें दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। धर्मनी पहली सीढ़ी, धर्मनी शुरुआत कहां से होती है? समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। देह आदि वाणी आदि ये तो पर है, अरे उसमें जो दया दान व्रत भक्ति का भाव होता है ये पुण्य है, ये भी पर है। हिंसा जुठू चोरी विषय भोग वासना ऐसा भाव होता है, ये पाप है। ये पुण्य पाप से रहित, वर्तमान पर्याय से भी रहित, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल नाम अकेला ज्ञान, एक रूप ज्ञान, एक रूप दर्शन, ये परमात्मा प्रकाश का स्वभाव है। ये ऊपर दृष्टि करना और पर्याय ने परद्रव्य को जानना, पर जानकर लक्ष्य छोड़कर अपना स्वरूप में रहना, दृष्टि करना, ये सम्यक दर्शन है। और पीछे स्वरूप में लीन होना, ये चारित्र है। चारित्र कोई कहीं नग्नपना के पंच महावृत का भाव, वो चारित्र नहीं। ये तो राग है, आश्रय है। समझ में आया? भगवान आत्मा देह से भिन्न, कर्म से भिन्न, जुदा, पुण्य पाप का भाव से भिन्न, और वर्तमान पर्याय में मति ज्ञान आदि है, अल्प ज्ञान, उससे भी भिन्न। ऐसा तत्व को जानकर, और राग आदि बदा अजीव तत्व है, पर है, ऐसा जानकर अपने में दृष्टि लगाना और अपने में स्थिर होना, ये मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? यहीं हो जाया है। यद्यपि व्यवहार नहीं कर, यद नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, व्यवहार से दिखी तो शरीर प्रमाण है, भगवान आत्मा है, तो भी निश्चय नहीं से लोकाकाश प्रमाण असंख्या प्रदेश है। ये नहीं खबर नो है, आत्मा असंख्य प्रदेश है। जैन सोना की सांकड़ी होती है ना, सांकड़ी कहते हैं, चैन, उसमें 1000 मकोड़ा होता है ना, 1000, ऐसे आत्मा में असंख्य प्रदेश है। सांकड़ी आखी है, ऐसा आत्मा। अभी सांकड़ी का जो चैन, उसके जो मकोड़ा होता है ना, ऐसे प्रदेश आत्मा, असंख्य प्रदेश आत्मा है। ये सर्वज्ञ शिवाय विजय कहीं दूसरे है नहीं। असंग प्रदेशीय भगवान आत्मा निश्चय से तो असंग प्रदेश है। लोकाकाश जितना प्रदेश है, इतना प्रदेश उसका है। व्यवहार से देह प्रमाण रहते हैं, पर लोग देह प्रमाण की दृष्टि छोड़कर असंख्य प्रदेश, उसमें अनंत आनंद पड़ा है। उसकी दृष्टि लगाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? व्यवहार नहीं से प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है। असंख्य प्रदेश है न, ये संकोच विस्तार 1000 योजन का मठ
में आत्म प्रदेश विस्तार पाते हैं और एक अंगुल ना असंख्य भाग में रहते जब लहसुन डूंगरी समझे प्याज, तो उसमें एक शरीर टुकड़ा इतना जो तो राई जितना, उसमें असंख्य तो शरीर है और एक शरीर में अनंत गुणा जीव है। तो इस संकोच हुआ प्रदेश का संकोच, और विस्तार होता है तो 1000 जो उनका मठ होता है इतना विस्तार हो जाता है, और लोक प्रमाण समुद्घात करते हैं लोक प्रमाण हो जाता है, इतना संतुलित है। अजी आत्मा किसको कहना ही खबर न मिले है, उसका क्षेत्र क्या, उसका भाव क्या, उसका द्रव्य क्या। समझ में आया? तो तुम्हारे हिंदी चला हिंदी लोग है ना। आत्मा देह तो माटी धूल अजीब तत्व है, और अंदर पुण्य पाप का भाव भी आश्रव तत्व है, और अंदर जो मति ज्ञान आदि की पर्याय ज्ञान की अल्प है, ये तो वर्तमान पूर्ति व्यवहार है। पर उसका त्रिकाली स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद, इस संभाव में समता भाव जब प्रकट होता है, पुण्य पाप से रहित संकित का भाव, ये समता भाव है। तो इस समता भाव में अतीन्द्रिय आनंद का गर्भ में अनुभव है। समझ में आया? समता इसको कहते हैं कि जिसमें आत्मा का वितरागी स्वभाव और अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव, उसकी पर्याय में संभाव में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना चाहिए। समझ में आया? हम संभाव करते हैं, यही संभाव नहीं। संभाव तो पुण्य पाप का भाव से भिन्न होकर अंदर में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, पूर्ण आनंद स्वरूप में जहाँ एकाग्र होते हैं, तो ये संभाव में पुण्य पाप का भाव विसंभाव है। उससे रहित जब संभाव हुआ तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद उसमें आता है। उसको वितरागी पर्याय, सम्यक दर्शन पर्याय कहने में आती है। समझ में आया? यही बात है भाई। हम तो अनंत बैर मुनि व्रत धार, अनंत बैर गृह को उपजायो, वो छोटा माता है। ये क्या पड़ी दरकार? मुनि व्रत धार, अनंत बैर मुनि व्रत धारण किया, ये तो पुण्य भाव है, शुभ भाव है, आश्रव है। मुनि व्रत पंच महाव्रत आदि मुनि धर्म ही आश्रव है, व्यवहार। है एक भूल आत्मा क्या है उसका ज्ञान न किया। एक आत्म ज्ञान बिन लेश सुख न पाया। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन आत्मा चीज क्या है? अंदर भगवान स्वरूप परमात्मा प्रकाश है न, परमात्मा स्वरूप ही उसका है। उसकी दृष्टि ने उसका अनुभव न किया, उसका ज्ञान किया नहीं, तो 84 लाख ना अवतार मिटा नहीं उसको। साधु हुआ द्रव्यलिंगी अनंत बैर, पर आत्मज्ञान बिना, ये आत्मज्ञान ऐसे अनुभव, ये पुण्य पाप का अनुभव है, ये तो दुख का अनुभव है। समझ में आया? उससे रहित भगवान आत्मा का अनुभव, उस वस्तु की दृष्टि करके जो पर्याय में अनुभव आता है, उसमें अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है। उसका नाम सम्यक दर्शन में धर्म की पहली सीढ़ी उसको कहने में आता है। बात ये से बापू समझ में आया? यात्रा की भक्ति की पूजा ये सब शुभ भाव है, पुण्य है। अशुभ से बचने को ही भाव है, धर्म नहीं। धर्म तो
असंग प्रदेशना दृष्टि करना, असंग प्रदेशी वस्तु, उसमें अनंत अनंत गुण का वास है। ये अपना देश ये है, असंग प्रदेश आत्मा का स्वदेश है। काठियावाड़ ने, गुजरात में, मारवाड़ी के देश आत्मा का नहीं। समझ में आया? ये असंग प्रदेश, ये भरपूर असंग असंग लोकना जितना आकाश प्रदेश है, इतना एक जीव का प्रदेश है। दरेक प्रदेश में अनंत गुण है। कल्याण भाई, ये आंखें છે શરીરની અવસ્થા વ્યવહાર નહીંથી संकोच विस्तार होता है, पर सीध अवस्था में तो संकोच विस्तार में रहित है। भगवान स्थिर क्या तो असंग प्रदेश स्थिर हुआ है, तो संकोच विकास है नहीं। तो मूर्ति तो ये चरम शरीर पर प्रतिष्ठा है। और यद्यपि पर्यार्थी नहीं से क्या कहते हैं, भगवान आत्मा पर्याय नाम भेद दृष्टि से देखो तो उत्पाद वही ने ध्रुव सहित है। तत्वार सूत्र में आता है ना, उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत। उमा स्वामी 10 लक्षणी परों में जब चलते हैं ना तत्वार सूत्र, तो उसमें उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत, सत दृढ़ लक्षणम। 3 पे से जानना हो तो पर्याय नहीं का विषय कहते। नई अवस्था उत्पन्न होती है, पुरानी अवस्था का व्यय होता है, ध्रुव ध्रुव रहते हैं। ये तीनों को देखना ये पर्याय नहीं का विषय है। व्यवहार नहीं से 3 भेद है। आत्मा का हो शरीर वाणी में तो जड़ तो रहे। ये तत्ता तत्व ना, ये अतत्व એટલે આ તત્વ નહીં, પર તત્વમાં જાય છે। પૂર્ણ પરિણામ એ પર તત્વમાં જાય છે, પણ તત્વ में जाते हैं। भगवान आत्मा उत्पाद वही ध्रुव सहित। उसमें भी कल कहा था रात्रि को कि उत्पाद जो आत्मा में पर्याय होती है उसको पूर्व का व्यय की अपेक्षा नहीं है। व्यय जो राग का होता है उसका उत्पाद की अपेक्षा नहीं, और ध्रुव है उसको उत्पाद वही की अपेक्षा नहीं। आओ मारो જશુભાઈ, આ લોજિક થી તો આવે છે આ બધું। એને ખબર નથી। એને બહારની ક્રિયાકાંડો અનંતવાર કિયા, પૂજા ભક્તિ વ્રત તપ ઉપવાસ ये बड़ी क्रिया रागनी क्रिया है, धर्म नहीं। समझ में आया? हाँ, कहते हैं कि उत्पाद हो इन्हें ध्रुव। जिस समय में नई पर्याय उत्पन्न होती है उसको उत्पाद कहते हैं, और वही समय में उत्पाद होता है, आगे पीछे नहीं। जिस समय में ये उत्पाद होता है वही समय में उत्पाद होता है। जैसे कि राग का उत्पन्न होना उत्पाद में, तो राग का उत्पन्न होने का काल ही है, और पूर्व का राग का व्यय होता है, और ध्रुव कायम रहते हैं। ये तीनों को देखना है तो पर्याय नहीं, व्यवहार नहीं का विषय है। ये तो भेद है ना। 3 अंश गिनना है तो पर्याय नहीं का विषय लेना है। एक जुदू है ना 3 पर्याय नहीं थे। उत्पाद वही ने ध्रुव कर सहित है, पर्याय थे। प्रमाण तो ध्रुव का ज्ञान और उत्पाद वही का ज्ञान, ये प्रमाण। हाँ, तो एक दिन है, उसका नाम पर्याय नहीं का विषय है। यही बात है भाई। दिगंबर धर्म सूक्ष्म बहुत, ये सिवाय दूसरे की चीज है नहीं। कुमकुंडाचार, कुमकुंडाचार नहीं छापया सब शास्त्र में है। समझ में आया? क्योंकि वो भगवान पासे गई थी। कुमकुंडाचार संवत 49 2000 वर्ष पहले
भगवान विराजते हैं सिमंदर परमात्मा महावीर में। ત્યાં ગઈ थी 8 दिन रही थी, ત્યાં का समय सार शास्त्रादि सब बनाया। 4.25 लाख अक्षर है ना, तो उसका बनाया है कुंकुंदाचार, बीच में है ना कुंकुंदाचार। हाँ, परमात्मा प्रकाश है। योगींद्र देव मुनि से 1300 वर्ष पहले योगींद्र देव मुनि दिगंबर जंगल में रहने वाला, उसने परमात्मा प्रकाश बनाया। तो उसमें टीकाकार कहते हैं कि आत्मा को जानने में कारण पहले तो उत्पाद 3 भेद से जानना ये पर्याय है, और द्रव्यार्थी नहीं का टंकोत्करण ज्ञायक अखंड स्वभाव। अरे आखिर द्रव्य એટલે पदार्थ की दृष्टि से देखिए तो ते वस्तु भगवान आत्मा टंकोत्करण ज्ञान की मूर्ति अखंड है। जो संकेत का विषय है। समझ में आया? आओ महाराज, पहलो तो जी समझो कठिन पड़े। मार्ग बापू वितराग मार्ग जिनवर देव त्रिलोकनाथ परमेश्वर है, जे एक समय में 3 काल 3 लोग दिखा। उसने दिव्य ध्वनि इच्छा बिना दिव्य ध्वनि निकली, ये दिव्य ध्वनि में से शास्त्र बनाया। समझ में आया? उसमें परमात्मा प्रकाश भी दिव्य ध्वनि का सार है। कहते हैं आत्मा में 2 प्रकार, उत्पाद व्यय ध्रुव जो होता है ये पर्याय नहीं से, 3 भेद पर्याय नहीं से है, और द्रव्यार्थिक नहीं से। देखो द्रव्य से वस्तु जो टिकाव है तो एक रूप विनायक भाव टंकोत्किरण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है। जहाँ सम्यक दर्शन का विषय है ये टंकोत्किरण जब टाँका थी खुद ही निकाले न अंदर से, ऐसे भगवान विराजमान अंदर चैतन्य। जिन सोई आत्मा अन्य सोई कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। जिन सोई आत्मा, जिन वितराग स्वरूप है आत्मा, उसको जिन कहिए। जिन सोई अन्य सोई कर्म, पुण्य ने पाप शरीर वाणी आदि पर चीज है। समझ में आया? ये द्रव्यार्थी नहीं करते तो न्यायिक अखंड स्वभाव से ध्रुव है, ध्रुव ही है। इस तरह पहले निज शुद्धात्म द्रव्य को दो કે આ રીતે पहला निज शुद्धात्म द्रव्य को अच्छी तरह जानकर प्रथम आत्मा को ए रीते व्यवहार नहीं से, निश्चय नहीं से, जे रीते है ये रीते जानकर नहीं એટલે જ્ઞાનનો વિષય છે, જ્ઞાનનો પર્યાય છે, એનો વિષય વ્યવહારનો વિષય વર્તમાન, નીચેનો વિષય ટકાવ। જ્ઞાન નહીં એ જ્ઞાનનો અંશ છે, એનો જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાનનો એક પેટા ભાગ છે। એ નહીંના 2 प्रकार के व्यवहार ने निश्चय। वर्तमान पर्याय आदि को देखना ये व्यवहार है, टिकाड़ी को देखना ही निश्चय है। मार्ग भाई आ तो वितराग दुनिया ये तो बाहर थी માંડી बैठा है कि आ धर्म है ना फलानु है, ऐसी चीज दुर्लभ चीज है। अनंत काल में अनंत वैर नवमी गृह गई दिगंबर साधु होकर तो भी मिथ्या दृष्टि रही। દ્રવ્યગુણ પર્યાયનું હતું શાસ્ત્રનું, પણ દ્રવ્યનું અંતર્દૃષ્ટિ નહોતી। अंतर वस्तु चैतन्य मूर्ति भगवान सहजात्म स्वरूप, सहजात्म सहज स्वरूप परिणामी भाव रूप वस्तु, उसकी दृष्टि नहीं है। ये दृष्टि बिना सब किया, महाव्रत पाया, आश्रम किया, सब किया, सब एकड़ा बिना ना मींडा निकला।
क्या कहते हैं, बिंदु, एक बिना बिंदु। हाँ, ये कहते हैं पहला ना पहले शुद्धात्म द्रव्य को देखो, उसका निज शुद्धात्म द्रव्य को। भगवान सर्वज्ञ ही तो पर है, शब्द है नहीं। पहला ना पहली चीज आत्मा है, उसको जानना कि द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, असंग प्रदेश क्या है, संकोच विकास कैम है, संकोच विकास कैम नहीं है, ऐसा उसको पहले जानना। हाँ, अच्छी तरह जानकर पास एम नहीं, अच्छी तरह जैसा है ऐसी रीते ज्ञान कर। हाँ, पूर्णानंद का नाथ प्रभु, नित्यानंद प्रभु, उसकी दृष्टि और उसका जानकर, और आत्म स्वरूप से विपरीत पुण्य आदि पदद्रव्यों को भी अच्छी तरह निश्चय करके। भगवान आत्म स्वभाव से भिन्न सब, पुण्य ने पाप आदि विपरीत पुण्य आदि पदद्रव्यों, शरीर वाणी जड़ आत्मा माटी धूल है, ऐसे पैसा आबरू कीर्ति ये सब धूल है, अजीब है। एने भगवान आत्मा को जानकर पर द्रव्य क्या है उसको बराबर जानना। हाँ, ये लक्ष्मी भी अपनी नहीं, स्त्री कुटुंब परिवार भी अपना नहीं, अपनी पर्याय में अल्पविनाश है, इतना आत्मा नहीं। हाँ, तो आ हमारी स्त्री ना हमारा दीकरा ना हमारा बाप ने आत्मा ने दीकरा बात के बाबत है ये અહીં તો પર્યાયની અલ્પતા એ પણ તિકાળમાં નથી। રાગ ને સ્ત્રી ને કુટુંબ ને પૈસા ને મકાન ને મેરા धर्मणा है ज्ञानी की, तेरी चीज तेरे से भिन्न क्यों रहे, भिन्न रहे तेरी चीज कहां से आई। ये आई कहते हैं अपना अच्छी तरह को जानकर आत्म स्वरूप से विपरीत, ये पुद्गल 5 द्रव्य है ना, पुद्गल आकाश काल आदि, ये पर द्रव्यों को भी अच्छी तरह निश्चय करके आप पर का निश्चय करके बाद में समस्त मिथ्या राग आदि विकल्प को छोड़कर पुण्य धर्म है, पाप में मजा है, ऐसी जो मिथ्या दृष्टिपना है ये छोड़ दे। निश्चय करके बाद में समस्त मिथ्या राग आदि विकल्प को छोड़कर, विकल्प नामी रागनी राग विकार है, मिथ्याद भी विकार है, राग आदि पुण्य पाप दया दान व्रत आदि पर विकार है, इसको छोड़कर वितराग चिदानंद एक सवार शुद्धात्म तत्व में जो लीन है। आत्मा वितराग चिदानंद एक स्वभाव, चाहे एक જોઈએ, એક બધા ઠેકાને પડી ગયો। ઠીક, એ અર્થ કરનારને એક ખ્યાલમાં નથી લેવો। वितराग चिदानंद एक स्वभाव शुद्धात्म तत्व में जो लीन हुए हैं, ये भगवान पूर्णानंद स्वरूप आत्मा उसका तत्व में, चिदानंद तत्व में जो लीन हुए हैं, ये धन्य है, ये मार्ग है। पुण्य पाप का विकल्प से भी हटकर शुद्धात्मा वितराग चिदानंद स्वरूप में दृष्टि करके लीन होना, ये धन्य है। कहते उसने मोक्ष मार्ग प्रकट किया, यानी अल्पकाल में मोक्ष उसको होगा। क्रियाकांड से धर्म होता है, तरण काल में नहीं, और अक्रियाकांड दया दान व्रत तप आदि वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, तो बंधन का मार्ग है। आता है बीच में अशुभ से बचने को, ऐसा शुभ भाव आता है, देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा यात्रा भाव आता है, पर है वो बंद का कारण।
समझ में आया? शुद्धात्म तत्व में जो लीन हुए वे ही धन है। परदेव निर्विकल हो, बच्चा समस्त मिठा वितराग के दाम में एक सवाल है। स्व शुद्धात्म तत्व रता एव धन्या रता है ना, लीन लीन रता में लीन करो। भगवान स्वरूप परमात्मा अपना निज स्वरूप को जानकर और अपने से भिन्न पुद्गल आदि जड़ को जानकर स्वरूप में लीन होना दृष्टि करके एक उत्कृष्ट बात देती है ना, उसकी दृष्टि करके उसमें लीन होना ये धन्य है। उसने मोक्ष मार्ग पा लिया। बाकी क्रियाकांड में धर्म मानते हैं नहीं, धर्म का कारण है मानते हैं, ये सब मिथ्या फल है। समझ में आया? होता है पर वो निश्चय का कारण नहीं। समझ में आया? मोटा होता गड़बड़ी ही चलती है ना, या व्यवहार करते करते निश्चय होगा, राग करते करते वितराग दिशा होगी, लहसुन खाते खाते कस्तूरी का डकार आएगा, ऐसी बात है। यहाँ वो कहते हैं आचार्य महाराज, अपना शुद्धात्म द्रव्य उसमें लीन हुए। यही मोक्ष मार्ग, यही धन है। ऐसा ही कथन परमात्मा तत्व के लक्षण में श्री पूज्यपाद स्वामी कहा, ये चीजों ये प्रमाण अच्छे थे। यह आत्मा व्यवहार नहीं कर अनादि का बंधा हुआ है, राग से कर्म से निमित्त से व्यवहार नहीं कर बंधा हुआ है, और अपने किए कर्मों के फल का भोगता है, उन कर्मों के क्षय से मोक्ष पद का भोगता है। खरेखर तो राग का नाश होकर आनंद का भोगता वो आत्मा है, मोक्ष पद का भोगता है। ये तो ज्ञाता है। जानना देखने वाला भगवान आत्मा है। ये सिवाय सब चीज तो ज्ञाता का ज्ञेय है, दूसरी चीज जानने लायक ज्ञेय है। आत्मा ज्ञाता है, कोई उपाधि आदरणीय है। आखिरी बात मामा है, देखने वाला है। ये तो 14 ब्रह्मांड लोकालोक को जानना देखने वाला भगवान आत्मा है। कोई चीज का करने वाला अपने सिवाय कोई चीज को बनावे रचे है। धंधो व्यापार कौन करे जो जड़ से होता है। यही बात भाई, यहाँ तो कहा ना अपना तत्व से तो अन्य पुद्गल आदि तत्व है। ये धंधा पैसा देना लेना ये सब जड़ की क्रिया है, तो आत्मा की क्या है। राग आता है घनी जाना माना की देह की क्रिया जड़ से होती है, अपने से नहीं होती है। तो ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ દેવ જનવર દેવ એમની વાણીનો આસાર છે। जिसमें भगवान पूर्णानंद स्वरूप दृष्टि में आवे नहीं आज जब लग तब लग सब फोगट है, संसार है। समझ में आया? संसार अवस्था देखने वाला अपनी देह के प्रमाण है, चाहे तो शरीर प्रमाण है ना। संसार अवस्था प्रदेश का संगोच के साथ दान करता है। उत्पाद वही ध्रुव सहित है, जे कीधु ये श्लोक है, और अपने गुण पर्याय सहित है उत्पाद वही ध्रुव। इस प्रकार आत्मा के जानने से ही, ऐसा भगवान आत्मा को जानने से ही साध की सिद्धि है, मोक्ष की तब सिद्धि है, साध मोक्ष है।
હવે નિવૃત્તિ ક્યાંથી લે સમજે ક્યારે? સંસારના કામ આની નગર નિવૃત્તિ નહીં. અહીં તો કહે છે કે બધી છે राग का विकल्प से भी निवृत्ति आत्मा में तो हाँ 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 ऐसा आत्मा की साध की सिद्धि दूसरी तरह नहीं. दूसरे रास्ते मोक्ष का मार्ग उत्पन्न होता नहीं. हाँ 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 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र અને મોક્ષ માર્ગ તત્વાર સૂત્રનું પહેલું સૂત્ર. ये सम्यक दर्शन ज्ञानी के देवगुरु ની श्रद्धा पे सम्यक दर्शन नहीं. ये तो व्यवहार है, विकल्प है. हाँ अपना पूर्ण स्वरूप ज्ञान आनंद थी परिपूर्ण भगवान आत्मा उसका शरण लेकर आश्रय लेकर सम्यक दर्शन ज्ञानचारी चलता है. ये मोक्ष का मार्ग है. समझ में आया? पर का आश्रय जितना करे इतना बंद का मार्ग है. भले त्रिलोकना तीर्थंकर का पूजा ने आश्रय करे पण राग ने बंद का कारण है. व्याख्यान સાંભળવાનો વિકલ્પ રાગ બંધનું કારણ है. આવો મારે છે ભાઈ તો વિતરાગ સર્વજ્ઞ જીનવર દેવ જેણે વ્યવહાર રત્નત્રયને છોડીને જેને નીચે રત્નત્રને અંગીકાર કર્યા. समझ में आया? तब ये केवल ज्ञान मुक्ति को पाया. हाँ हाँ आगे संयमी परम शांत भाव का ही करता है. देखो है मुनि सच्चा मुनि है ये तो राग का भी करता नहीं, पंच महावर्त का विकल्प उठते हैं उसका करता नहीं. हाँ 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 है आगे जो संयमी सम्यक दर्शन सहित जिसका चारित्र दशा प्रकट हुई है. अंतर के आनंद का प्रचुर संवेदन हुआ है. सम्यक दर्शन सहित पूर्णानंद का नाथ का स्वीकार सहित जिसको प्रचुर आनंद का संवेदन प्रचुर आया है उसको संयमी कहते हैं. ये संयमी परम शांत भाव का ही करता है. ये देह की क्रिया का करता नहीं, वाणी का करता नहीं, पुण्य पाप का भाव का करता नहीं. बहुत बातों ये शांत भाव का ही करता है. ये तो वितरागी परिणति का ही करता है. ये भी व्यवहार है. जीव करता के नहीं व्यवहार है. शांत भाव का करता शांत भाव पर्याय है. वितराग परिणति ये धर्म ये परिणति का करता परिणति पर्याय है. द्रव्य को कहना ये व्यवहार नहीं है कहना है. समझ में आया? उसकी निंदा द्वारा स्तुति तीन गाथाओं में कहते हैं. आत्मगत ज्ञानी અને શાંત વિતરાગી પર્યાયમાં સંયમ દશા પ્રગટ છે. એ મુનિ એની નિંદા દ્વારા સ્તુતિ કરશે. નિંદા દ્વારા સ્તુતિ એટલે કે કર્મ છે એનું બંધન છે અને બંધન છે તે બંધુ છે અનાદિના હારે. એને જેને મારી નાખ્યા કર્મને જેને મારી નાખ્યા બંધુને માર્યા. બંધ હે ને બંધ બંધ અને બંધુ ગઈ ગઈને એનો નાશ કર્યો. એ સંયમી મુનિની નિંદા તરીકે સ્તુતિ હે. प्रभु ते तो बंधने बंधु ने मारी नाख्या. अनादि हारे रहता कर्म साथी में कभी कुछ छूटा नहीं था उसका ते नाश कर दिया. तेरा बंधु था तेरी साथ में रहते थे. એ રીતે 43મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો.
આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. સુખધામ અનંત સુખ